Good morning to one and all present here. I, Anupreet, HOD from Computer Science Engineering Department, welcomes Navna Datta ma'am, vocational trainer from Government Girls Higher Secondary School, Lucknow, Ekta Kumari ma'am, Tulsi Ram sir, Suman Bala ma'am, Aarti Sharma ma'am from Government Higher Secondary School, Government. I also welcome Engineer Amit Sharma sir, Principal IECS, our Chief Coordinator sir, B.R. Verma sir, authorities of various departments and dear students from both the schools. As you are here for your tour to Yogananda College of Engineering and Technology. To know more deeper about the college, I would like to call Engineer Rajneesh Mohota sir, actually Civil Engineering Department, to brief you more. A very warm good morning to all of you. Good morning, sir. Thank you. So, I must congratulate that you have taken a really good step to visit engineering college, because no need of telling that how important engineering profession is. It is one of the pioneer professions and it is unparalleled profession. I think this profession exists whenever or whatever or how long the universe exists. तो आपका वेलकम करते हैं on behalf of Yogananda College. मैं थोड़ा सा आपको brief कर दूँ what this college is and what type of services we are rendering. Our college name is Yogananda College of Engineering and Technology. It is established in the year 2013 under the aegis of Jambal Group of Education Institution. The founder member of the group is Engineer Vidhi Singh Jambal. He himself is a postgraduate engineer and he is acting as a chairman of the group. We have Vice Chairman Thakur Shivdev Singh Jambal, another partner, the fountainhead, Managing Director, Engineer Renu Babu. She is also having a rich engineering background. So this college is really different from other engineering colleges in the Union Territory of Jammu and Kashmir, because we are doing exceptionally different things in different sphere of life. आपको मालूम होना चाहिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए एडमिशन लेने के लिए एक प्रोसेस होता है. In our Union Territory we have one government agency by name BOPE, B for Bombay, not for victory, BOPEE. It is Board of Professional Entrance Examination. इसका ऑफिस जो है that is in Bahu Plaza in Jammu. कश्मीर का तो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जम्मूइट्स हैं. तो in the month of February or March they call applications. Whosoever is desirous to seek admission in any streams of engineering. तो हमारा कॉलेज जो है we are having offering BTech. Earlier it was BE, Bachelor of Engineering, in core branches. What are those core branches? One is civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering and computer science engineering. आज जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, be it a railway station, be it airport, be it flyovers, good housings, vertical gardens, bus stands, वेव मॉल जैसे आपका जम्मू का आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस जो हैं, तो ये इसके लिए सिर्फ सिविल इंजीनियर्स आर हैंड रिस्पॉन्सिबल. आपका जल शक्ति डिपार्टमेंट इट इज सर्व्ड बाय सिविल इंजीनियर्स. अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आपके घर में जितने भी आजकल गैजेट्स हैं वो सारे बिजली की हेल्प से चलते हैं, चाहे वो गीज़र हो, चाहे वो आपके टीवीज हो, जो भी चीज़ है, इवन इन्वर्टर्स भी जो आपके घरों में हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ दैट पावर आपके चार्ज होते हैं. एंड दे मेंटेन ऑल्सो. आपने देखा होगा ग्रिड स्टेशन में हर एक मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम भी आती है, उसको रिपेयर भी करना पड़ता है. तो वी हैव ए वेरी गुड ग्रिड स्टेशन एंड ग्लैडनी वी हैव.
जहाँ पे रिपेयरिंग होती है सारे ट्रांसफार्मर्स की। सो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। आप लोग जो भी गाड़ियों में मूव करते हो, कितनी आपने देखा होगा कितनी ट्रांसफॉर्मेशन है, कितनी जल्दी जल्दी मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, नई नई स्कूटीज लॉन्च हो रही है, नई नई मोटरसाइकिल्स लॉन्च हो रहे हैं। जो डीजल पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो कन्वर्ट होके ई पे आ रही हैं, इलेक्ट्रिक पे आ रही है, ताकि आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, आपका इकोसिस्टम कंट्रोल रहे। स्टार्टअप की कितनी बातें चल रही हैं। और आज अगर कंस्ट्रक्शन में भी अगर हम अचीव कर पा रहे हैं, जल्दी हमारे प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू मशीन्स। कितनी बड़ी बड़ी टॉवर क्रेन्स वगैरह चल रही हैं। और आपके फ्लाईओवर आपने देखा होगा अखनूर रोड पे कितना आलीशान फ्लाईओवर हमारा बना है। हमें एटलीस्ट 20 से 25 मिनट लगते थे जीवन तक पहुंचने में, तो विद द हेल्प ऑफ फ्लाईओवर विद इन सेकंड्स वी रीच देयर। we save precious time, so what deserve is we save precious fuel also, isn't it? तो अगर हमें डेवलप होना है तो आई थिंक इंजीनियर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रही बात कंप्यूटर साइंस की, आपको मालूम ही है कि आज कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्यों डिमांड ज़्यादा है? क्योंकि आज जितने भी डिज़ाइनिंग हो रही है, जितना भी काम हो रहा है, वो सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड हो रहा है। और उसमें डीप नॉलेज होती है, कोडिंग होती है, या जो भी हो रहा है। आपने एआई का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आपकी वॉइस कॉलिंग, कितनी फैसिलिटीज़ हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस। तो मुझे ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत है। आई थिंक यू आर वेल एक्वेंटेड विद द टेक्नोलॉजी, कि हाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग ट्रांसफर्ड ना, कितनी जल्दी हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपके खुद में ही कितनी तब्दीली आई होगी, है ना। अब पुंछ रोड कितनी वाइड हो रही है। अब आप जिस रोड से आए होंगे आपने देखा होगा बड़ा कम टाइम लगा। हाँ, टाइम थोड़ा इसलिए ज़्यादा लगा होगा कि अभी एक्सपेंशन वर्क इज गोइंग ऑन। द मोमेंट व्हेन द प्रोसेस विल बी ओवर, तो आप विद इन नो टाइम आप जम्मू में सारा काम करके, मुझे लगता है अखनूर के काफ़ी लोग जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, शाम को घर वापस जाते हैं बिकॉज ऑफ फास्ट डेवलपमेंट। तो इंजीनियरिंग प्रोफेशन इज अनपैरेलल प्रोफेशन एंड आवर कॉलेज इज डूइंग ए रिमार्केबल जॉब। और मेरा तो आपसे ये है कि आप जब वो आपकी एप्लीकेशंस कॉल होती हैं द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, तो इमीडिएटली विद नो मतलब थॉट जो है आपको फॉर्म भरना है। देखिए बोपी ऐसा है कि बोपी के पास अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं तो फिर वो एक छोटा सा एक एंट्रेंस करती है बाय नेम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर एप्लीकेशंस कम होती है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं, तो फिर वो आपके 12th का मेरिट लेके आपको कॉलेजेस अलॉट करते हैं। आपकी काउंसलिंग होती है, वहाँ आपको कॉल करते हैं एज पर योर सीरियल नंबर। तो आपको वहाँ फिजिकली अपीयर होना है और वहाँ पे आपने अपनी कंसेंट देनी है कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए और कौन सा कॉलेज चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारा कॉलेज जो है लोकेशन वाइज, कंपटीशन वाइज इज एट नंबर 1। आपको खुद ही एहसास हो जाएगा, क्योंकि मेरे नेक्स्ट जो हमारी अचीवमेंट्स हैं कि हमने क्या, हाउ वी आर बेटर देन अदर कॉलेजेस। तो हमारे मेरे कलीग जो है मिस्टर लवनीश तलवार को आपको स्लाइड्स के थ्रू सारा बताएंगे कि हमने क्या क्या अचीव किया एंड हाउ वी आर ग्रूमिंग आवर स्टूडेंट्स। वी आर कमिटेड टू गिव बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, क्योंकि हमारा आप ही प्रोडक्ट है। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्केट में सेल आउट नहीं होगा, राइट। तो आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इंजीनियरिंग की नॉलेज हम देंगे। बाकी जैसे ही आपका ये सेशन कंप्लीट होगा, यू विल विजिट आवर लाइब्रेरी, यू विल सी आवर लैब्स, हाउ वी आर कैरिंग आउट प्रैक्टिकल्स ऑन व्हाट मशीन्स। आपकी जो भी क्वेरीज होगी, और आपने सबसे इंपॉर्टेंट है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, only percentage does not fulfill your requirements। वो एक mere piece of paper होगा just for entry, है ना, आपको एंटर करने के लिए। रेस्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने वो मार्क्स कैसे हासिल किए। तो उसके लिए you should have effective communication, you should have self confidence and you should have self belief। अपने अंदर विश्वास। हम आपको नहीं मैं कहूँगा, अभी तो आप छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, आपने एग्जाम भी देना है। इवन जो ऑलरेडी हमारे बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उनको भी प्लानिंग नहीं है कि हमने नेक्स्ट करना क्या है। जब आप क्लियर ही नहीं होंगे, आपने कोई रोड मैप नहीं अपना बनाया होगा कि आफ्टर 5 years या आफ्टर 2 years वेयर यू वुड लव टू सी योरसेल्फ।
या आपने अभी से ड्रीम और डे ड्रीम, नाइट ड्रीम्स का कोई मकसद नहीं होता, डे ड्रीमिंग करनी है। और ड्रीमिंग जब करनी है आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए कि मैंने किस ब्रांच में एडमिशन लेनी है, उस ब्रांच की एप्लीकेशन क्या है, उसके क्या क्या जॉब एवेन्यूज हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली। अब आपने ब्रांच ली मेट्रो सिटी वाली, लेकिन आपके माइंड में ये है कि मैंने J&K नहीं छोड़ना है, अपने लखनपुर के बाहर नहीं जाना है, तो आपने गलत डिसीजन लिया, फिर आपने वेस्ट किया 4 साल की ट्रेनिंग है हमारी यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है और उसके बाद मुझे जॉब कैसी करनी है। हर एक ब्रांच के लिए गवर्नमेंट सेक्टर भी है, हर एक ब्रांच के लिए सेमी गवर्नमेंट सेक्टर भी है, हर एक ब्रांच के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी है। अब यहाँ आपने देखते हैं कि आपने अपने आप को कहाँ देखना है, ठीक है? एनी डाउट? डोंट हेजिटेट, आई एम हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज। वैसे आपका किस में इंटरेस्ट है, किस ब्रांच में है? आपको नॉलेज है कि इंजीनियरिंग होती क्या है? कितने लोग हैं जिनके घरों में लोग इंजीनियर्स हैं? प्लीज रेज योर हैंड। कोई ऐसा बच्चा है जिसके घर में रेज लाइक दिस? कौन है आपके घर में? व्हाट ही इज? अच्छा, वेयर ही इज सर्विंग? कहाँ? वेयर इन J&K? गुड़गांव। वेरी गुड। तो आप क्या आप भी करना चाहेंगे कंप्यूटर? देखिए, एक दूसरे से ही बंदा इंस्पायर होता है। आप अपने किसी रिलेटिव की अचीवमेंट्स देखते हो, उसकी वेल्थ देखते हो, उसकी ग्रोथ देखते हो, तो डेफिनेटली आपका स्वाभाविक है उससे इंस्पायर होना, है ना? एक रोल मॉडल किसी को बनाना, तो ऐसा आप सर्च की। बाकी गूगल आपके पास है, आज मोबाइल सबके पास है। आप हमारी बातों पर विश्वास क्यों करेंगे? आप गूगल में जाके हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने जो भी अपलोड किया होगा, इट इज ऑल ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। आज के वर्ल्ड में हम फिशी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, इमीडिएटली इंसान पकड़ा जाता है उसमें। हमने वही चीजें अपलोड की होंगी अपने फेसबुक पेज पे या इंस्टा पे जो हमने वाकई रियल में की। Am I right? So not taking much of your time because time is very precious. एक वाइज पर्सन ने कहा है कि फॉर ए बिजनेसमैन टाइम इज मनी, ठीक है? तो टाइम का आपने जुडिशियस यूज करना। बाकी नेक्स्ट आई इनवाइट माय कलीग मिस्टर लवनीश तलवार हु विल शो यू slides. Through slides you can have a virtual tour. So good afternoon to each and everyone present to be here. On the behalf of Yogananda College of Engineering and Technology, I welcome all the faculty members of Government Higher Secondary School Akhnoor as well as the Government Higher Secondary School Bhubaneswar, along with the Principal ICS Engineer Anish Sharma ji, Chief Coordinator Engineer B.R. Verma ji, and respective the head of the departments. So जैसे कि रजनीश सर ने आपको बताया अबाउट अवर कॉलेज दैट योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सो किस तरीके से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हमारे पास हैं। और योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में 2013 में आया था और एक कॉन्टीन्यूस हमारी अप्रोच रही है कि इन एडिशन टू द अकेडमिक्स हम लोग स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करते हैं सो दैट उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। हर ईयर हमारा कुछ प्लान होता है, कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली हम लोग मूव करते हैं, जिसमें आपका रेगुलर स्टडीज़ तो रहता ही रहता है, बट इन एडिशन टू दैट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रहती हैं। सो आने वाले 10 या 15 मिनट में मैं आप लोगों के साथ शोकेस करूंगा कि हमारे योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने लास्ट ईयर कौन कौन सी अचीवमेंट, लास्ट ईयर कौन कौन सी चीज़ें करी थी। तो उसी के साथ आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि why YCT is different from other institutes, the UT of J&K. UT of J&K में और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बट YCT उन सब में से अलग कैसे है। So we have a separate thing rather from other engineering colleges to make a YCT different from other institutions, and our students are proudly say we are YCTs. So जैसे ही आप लोगों ने कॉलेज में एंटर किया होगा अपने स्टीम फैकल्टी के साथ बस में, तो आप लोग सीधा कॉलेज में आते होंगे। तो पहले हम आपको एक थोड़ा सा ड्रोन शॉट से कॉलेज की बिल्डिंग के बारे में बताते हैं आउटडोर, कि हमारा कैंपस लगता कैसे है, फिर उसके बाद हम इन कैंपस में आएंगे।
So I request Neeraj sir to please start the meeting. So this is all about our YCT infrastructure. Now coming to the activities that we have performed in the last year. So to start, हमारे YCT under the aegis of Chamba Group of Education Institutions, हमारी tagline where excellency is just the beginning. We have best practices. Number one will be the spoken tutorial project. Now, what is spoken tutorial project? This spoken tutorial project क्या है? See, you can see the spoken tutorial project is basically an IIT Bombay initiative. You all know हमारे पूरे इंडिया में different IITs हैं, different NITs हैं. और IITs या NITs या हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये सारे के सारे जो गवर्नमेंट हैं, ये हैं EICT के साथ. So IITs are the basically the best institutes in all over, you can say that, India. अब स्टूडेंट्स आईआईटी में जब जाते हैं आफ्टर 12 वो अपना JEE का एग्जाम या JEE मेन का एग्जाम देके अपना आईआईटी क्वालिफाई करते हैं. बट किसी ना किसी वजह से अगर आप लोगों का आईआईटी क्रैक नहीं हो पाता तो हमारे YCT ने आईआईटी बॉम्बे के साथ एक MOU साइन किया हुआ है. एंड दैट MOU इज बेसिकली कि उनके प्रोफेसर्स हमारे यहाँ पर ऑनलाइन लेते हैं. स्टूडेंट्स को हम लोग रजिस्टर करवाते हैं और रजिस्टर करवाने के बाद स्टूडेंट्स उसमें 6 मंथ 4 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स ट्रेनिंग करते हैं. ट्रेनिंग करने के बाद उन लोगों के पेपर्स होते हैं, पेपर्स के बाद उनकी सर्टिफिकेशन होती है. सो द नंबर वन थिंग विल बी YCT is an MOU with IIT Bombay and we are proudly say YCT bagged the Bright Institutions Award by IIT Bombay last year. This is the award taken by our head of the department, Civil Engineer Rajneesh Malhotra sir. Last year, उनको ये award दिया गया था IIT Bombay. These are the training programs जहाँ बच्चे बैठ के training programs कर रहे हैं और मिलती है. So हम लोगों को YCT कॉलेज को अगर award मिला है, वो award हमें मिला है बच्चों की वजह से, ताकि हमारे बच्चों ने IIT के पेपर्स क्रैक किए, वो स्पोकन ट्यूटोरियल के पेपर क्रैक किए. क्रैक करके उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में बताया कि YCT इज द इंस्टीट्यूट जहां पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं. और फिर आईआईटी ने हमें ऑनर किया एक सर्टिफिकेशन देकर. एंड वी रिसीव्ड दिस सर्टिफिकेट अवार्ड, दैट इज अ नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिसिएशन. वी रिसीव्ड दिस अवार्ड. Now next will be we have NDL, that is called as the National Digital Library. Now what does this mean? What is National Digital Library? आप लोगों के स्कूल में लाइब्रेरी होगी, आप लोग स्कूल में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, अपने बुक्स को स्क्रॉल करते हैं और जो भी आपको रेफरेंस बुक चाहिए आप रेफरेंस बुक लेके इश्यू करवा के उसको पढ़ सकते हैं. सेम लाइब्रेरी ऑफलाइन मोड वी हैव अ YCT, बट इन इंजीनियरिंग देयर आर फ्यू बुक्स जो बुक्स आपको ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होती ड्यू टू कॉस्ट की वजह से समझ लीजिए या और किसी चीज से समझ लीजिए. So we have an open access of National Digital Library. This National Digital Library is basically an online platform जहां पर स्टूडेंट को लॉगिन और पासवर्ड दिया जाता है. स्टूडेंट लॉगिन पासवर्ड करके अपनी पूरी की पूरी बुक को डाउनलोड कर सकता है और किसी भी टाइम पर किसी भी जगह पर बैठ के पूरी की पूरी बुक को एक्सेस कर सकता है. एंड राइट नाउ we have total number of students 268 students we are registered and our faculty members 34 faculty members are registered in this NDL.
सो एज ए फैकल्टी, एज अ स्टूडेंट आपको लगता है मुझे फिजिक्स की ये वाली बुक चाहिए, मुझे मैथ्स की ये वाली बुक चाहिए, आपको कोई बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, कोई फिजिकल लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है। टुडे सिनेरियो वी हैव अ स्मार्टफोन, आप अपना स्मार्टफोन निकालिए, हम आपको यूजर नेम पासवर्ड देंगे, यू गो टू द साइट, डाउनलोड द बुक एंड टेक इट अ बुक। And highest package will be 7 LPA, 7 lakh per annum, and the lowest will be 3 LPA. So accordingly you can count per month kitna hoga. This is the batch 16-20, 33 students are placed under the package of 8 LPA maximum and minimum will be 3 LPA. 17-21, 10 LPA will be the highest package and 3 LPA will be the lowest package. And these are different, you can say that the companies where the students has plotted. You can see Byju's is there, Myntra is there, Flipkart is there, HDFC Bank is there, Jindal Steel is reputed companies में हमारे students जो है वहाँ पर placed हैं। 1822 7 LPA 3 LPA 12 students placed। 1923 batch, ये सारे batches हैं, 43 students will be placed। So these are the job offer letters, ये job offer लाइब्रेरी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। सो वी हैव एन एडिक्वेट लाइब्रेरी फैसिलिटी, आ जाइए जहाँ पर डिफरेंट रैक्स हैं, हमारे डिफरेंट बुक्स हैं। स्टूडेंट अपने फ्री टाइम पे यहाँ आते हैं, जो उनको बुक्स चाहिए होती है वो बुक लेते हैं, अपने फ्री टाइम पे बुक्स पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखिए हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम हैं, वो अपने फ्री टाइम पे यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, यू कैन गेट टेक आउट। अब ये यही ग्रुप पूरे का पूरा चलेगा मेरे साथ, ठीक है। These are the students, इनका भी एग्जाम है, इनके एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग रैक्स हैं, अलग अलग रैक्स जाएंगे ना, ऐसे ग्रुप सुना लीजिएगा। आगे इधर आ जाओ, अंदर आओ बेटा, आगे आओ, आगे आओ, बच्चे आगे आ रहे हो, आगे आओ। कंप्यूटर लैब, हमारे पास एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, और इस लैब में हमारे पास कॉन्टिन्यूशन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, दैट इज 24 आवर्स 365 डेज। हमारा जनरेटर पे बैकअप रहता है। इन एडिशन टू दैट थिंग हमारा ऑनलाइन यूपीएस भी अवेलेबल है। अब इस लैब में बेसिकली क्या है, वी हैव अ हाई इंटरनेट स्पीड, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं। जब भी वो फ्री होते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द और दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एज वेल एज द फैकल्टी, यहाँ पर आके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस लैब में हम लोगों ने इस लैब में कुछ बाइफिकेशंस करी हैं। ये बाइफिकेशंस क्यों करी हैं? क्योंकि जितने भी आप लोगों के नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी जेके बैंक अपनी रिक्रूटमेंट करता है, आपके एसएसआरबी वाले अपना पेपर लेते हैं, पीएससी वाले पेपर लेते हैं, एनटीए वाले पेपर लेते हैं, जेडब्ल्यू का एग्जाम, एडब्ल्यू का एग्जाम। सो वो सारे एग्जाम जो है वो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, और ये सेंटर्स हम लोग उनको डेडिकेटेड करते हैं। वो हमसे ये सेंटर्स लेते हैं, हायर करते हैं ये सेंटर्स, सो दैट कि स्टूडेंट्स यहाँ आके अपना एग्जाम दे सकें। अब आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर इतने लेवल की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर पेपर करवाती हैं, किसके लिए? सर्विस के लिए। तो वो तभी करवाती हैं जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, हमारे पास ऑथेंटिसिटी अवेलेबल है। तो दैट इज वाई ये हमारी एक ऐसी लैब है जहाँ पर ऑल द थिंग्स टू बी अवेलेबल टू बी देयर। और ये पूरी की पूरी जो लैब है सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, आप देख सकते हो सीसीटीवी हमारे लगे हुए हैं। और जब एग्जाम्स होते हैं, एक सर्वर रूम हम आपको आगे बताएंगे, उस सर्वर रूम में स्टूडेंट्स की परमिशन नहीं होती, वहाँ पर सर्वर्स के टीचर ही बैठते हैं। वो सर्वर रूम में बैठ के पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कि किस सिस्टम पे क्या ऑपरेशन चल रहे हैं, किस सिस्टम पे कौन सी साइट ओपन है, किस सिस्टम पे क्या है। कर ही नहीं सकते, वहाँ से उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक लैब है कंप्यूटर की। ऐसी सेम हमारे पास टोटल 6 लैब्स हैं। वी हैव मोर देन 300 अगर हम चाहते हैं कि कोई बच्चा सपोज हमने प्रैक्टिकल दिया, दे आर नॉट परफॉर्मिंग और यूट्यूब देख रहे हैं, तो हम यहीं से इसको एक्सेस डिनाई करते हैं, यूट्यूब यहीं से बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हर सिस्टम पे बैठ के हम हर वेबसाइट खोल सकते हैं, ठीक है? तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं हम, आईपी बेस्ड, ठीक है?
जैसे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं, सिमिलरली कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स अपने अपने लैब में होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लैब है, मशीन्स कैसे काम करती हैं ये लैब अंडर ही हम बच्चों को ऑपरेट करने देते हैं। ये जो मशीन्स हैं, ठीक है, दिस लैब वर्क ऑन हाई वोल्टेज पे वर्क करते हैं, मैट्स लगे हुए, करंट ना लगे, शॉक ना लगे, सो वी टेक केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ एवरी स्टूडेंट। अभी आपने विजिट किया लैब सीएससी की, जहाँ पर मैंने आपको बताया, फिर आपने विजिट की इलेक्ट्रिकल की लैब। ये लैब आती है सिविल डिपार्टमेंट की लैब, और ये लैब बेसिकली क्या है, ये है लैब ट्रांसपोर्टेशन की लैब। तो ट्रांसपोर्टेशन लैब क्या होती है, किस तरीके से हम लोग आपकी रोड्स बनाते हैं, जिस तरीके से आपकी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो रोड्स बनती हैं जब उसमें हम लोग आपकी चारकोल डालते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ के जो टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, सो दैट कि स्टूडेंट यहाँ से निकल के जब वो अपनी इंडस्ट्री में जाए या जॉब में जाए, उसको आइडिया रहे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन लैब क्या होती है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज टू बी देयर। ये सारी मशीनरी आपकी यहाँ पड़ी हुई है, जिसमें बच्चे हमारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, एक्चुअल में देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है। तो जैसे जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो सिविल डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, उनकी देख रेख में ये लैब लगाई जाती है, स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि इस लैब में किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। सो हर डिपार्टमेंट की हमारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट हमारी लैब्स हैं। सो उसमें से सिविल डिपार्टमेंट की एक लैब है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, ठीक है। आ रही तो ये बच्चे लैब है आपकी आईओटी की लैब, जो मैंने आपसे नीचे आपको दिखाया था, बताया था कि हम लोग एक ही जगह पर इंटरनेट की मदद से सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स जो भी आप लोग करना चाहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, वो प्रोजेक्ट्स इस लैब में हम लोग करवाते हैं। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट, और हमें चाहिए एक डेस्कटॉप जहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को इन्वर्ट करके वहाँ काम करवाते हैं। तो स्टूडेंट अपने फ्री टाइम पे यहाँ आता है आईओटी लैब में, देख सकते हो सिस्टम्स लगे हैं, और जितने भी चाहिए वो अलमीरा में हैं। तो वहाँ हमारे इंस्ट्रक्टर से, हमारे टेक्नीशियन से लेके यहाँ पर काम करते हैं, काम करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो मैं लास्ट आपसे बता रहा था, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट वही है आईओटी में। आपको देखिए स्टूडेंट्स ने खुद बनाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में हमारा जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें ये है कि ऑटोमेटिकली ये डस्टबिन सेंसर करता है कि हमने कौन सा वेस्ट डालना है। दिस वेस्ट इज बेसिकली यूज फॉर सॉलिड वेस्ट। तो हम लोग इस पर जैसे ही इसमें कोई लीटर डालते हैं, ऑटोमेटिकली ये ओपन होता है और डस्टबिन में सामान जाता है। अब ये डस्टबिन कितना फिल्ड है, कितना भरना है, कब इसको खाली करना है, उसके लिए यहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है कॉन्टिन्यूसली। ये सर्किटरी सारी इसके अंदर है। इफ यू सी, ये सर्किटरी है इसके अंदर सारी की सारी। तो ये सर्किटरी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मतलब कहीं से ली है, ये आप जैसे स्टूडेंट जो यहाँ पढ़े हैं, जो पढ़ के गए हैं, इन्होंने यहाँ पे उसकी खुद डिजाइनिंग की हुई है। तो डिजाइनिंग करके ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। दिस इज द वन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। वैसे ही हमारा एक और पड़ा हुआ है होम ऑटोमेशन सिस्टम का। होम ऑटोमेशन सिस्टम में किस तरीके से आप अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो मेन आइडिया आईओटी लैब का ये है कि स्टूडेंट आज के सिनेरियो में जो इंटरनेट का जमाना है उसके ऊपर स्टूडेंट कैसे अवेयर हो सके। तो वी हैव दिस डेडिकेटेड लैब फॉर सीएससी स्टूडेंट, नॉट ओनली सीएससी, बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ आके फ्री टाइम पे या एक्स्ट्रा टाइम पे अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ कर सकते हैं आईओटी लैब में। तो ये लैब जो मैंने आपसे भी बताया था नीचे, ये लैब है बेटा हमारी वर्चुअल लैब। नाउ व्हाट इज वर्चुअल लैब? मैंने आपको बताया था ये लैब, वर्चुअल लैब जो है, ये हमारा एमओयू है आईआईटी दिल्ली के साथ। ये लैब डेडिकेटेड की गई है हर एक स्टूडेंट के, हर एक सेमेस्टर के, हर एक ब्रांच के बच्चे के लिए। हमारे पास टोटल 30 सिस्टम्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं दे आर हाईली कॉन्फ़िग्ड सिस्टम्स। इनकी स्पेसिफिकेशंस हाईली कॉन्फ़िग्ड सिस्टम्स हैं, और अलोंग विद इनमें हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्टूडेंट वो प्रैक्टिकल जो वो लैब में नहीं कर पाता किसी भी वजह से, वो किसी की वजह का मतलब ये नहीं है कि कंपोनेंट खराब है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल हियर। अब हमारे इलेक्ट्रिकल में क्या होता है बच्चे, जब भी हम लोग वोल्टेज की बात करते हैं, ये जो रूम में वोल्टेज आप देख रहे हैं, जो बल्ब ऑन हो रहे हैं, ये वो ऑन हो रहे हैं 220 वोल्ट पे, पढ़ा होगा, जो सुना होगा।
लेकिन जो वोल्टेजेस हमारी जनरेटिंग स्टेशंस पे होती हैं वो होती हैं केवीज में, किलो वोल्ट्स में। जो आप घरों के बाहर जो पोल्स होते हैं, जो वायर्स होती हैं, उनमें वोल्टेज होती है 11,000 वोल्ट्स, 33,000 वोल्ट, 66,000 वोल्ट। अब वो 33,000 66,000 वोल्ट पे अगर आपको कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी किट्स बनी हुई है 220 वोल्ट पे। तो हम लोग वो प्रैक्टिकल कहाँ परफॉर्म करें? या तो हम स्टेशन में जाकर प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, या हमारे पास मीडिया है, दैट इज अ वर्चुअल लैब। आप वर्चुअल लैब पे आके हमारे सिस्टम पे जाके उस लैब को वर्चुअली सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स को हम लोगों ने एक लेक्चर आर दिया हुआ है टाइम टेबल में। उस टाइम टेबल में अपनी क्लास में तो बच्चा प्रैक्टिकल परफॉर्म करता ही करता है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का बच्चा इस लैब में आता है, टीचर यहाँ होते हैं, उसकी परमिशन लेके उसको एक एक सिस्टम हम लोग अडॉप्ट कर देते हैं। सिस्टम अपने सिस्टम पे बैठता है, सिस्टम पे बैठ के जो भी उसको प्रैक्टिकल करना है प्रैक्टिकल करता है, रीडिंग्स लेता है। सो किसी भी तरीके इसको हम ऑफ कर देंगे तो जी उठा देंगे। मैडम देखिए आप इसमें डाल देंगे मैडम इधर आप आके देखिए, आप देखिए ना, हमने तो देखिए। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर एक और वेल्डिंग है, और वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग, ठीक है। 3 यूनिट लगे हैं जो हमारे पास, इसके साथ हम वेल्डिंग करते हैं। ये 2 केबल लगी हुई है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव है, अर्थिंग और दूसरी आउटवर्ड, ठीक है। इसके साथ एक पकड़ो, जहाँ पकड़ो जब भी ऑपरेशन करना तो ये आपको क्लियर करना This is thermal engineering lab. As you know, as by the name, thermal means heat. So this is the lab where practical of heat can taken place. So this is our रेफ्रिजरेशन टेस्टिंग। ये बिल्कुल वर्क करता है। 1.5 लाख है, आप इसमें पानी जैसे घरों में फ्रिज हमें ठंडा प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी देता है, तो सेम थिंग यहाँ होती है। This is our रेफ्रिजरेशन टेस्टिंग and it is working 100%. And the second one is दिस इज वोल्ट्स मीटर। आपकी रेडिएशंस कितनी है, जैसे किसी मटेरियल की रेडिएशंस कितनी होती है, तो दैट कैन बी चेक बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। थर्ड वन इज पिन फिन apparatus। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ एनी मटेरियल बाय पुटिंग दिस डिवाइस हियर, इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली। सो these are the experiments and this is, सभी बच्चे यहाँ देखें, दिस इज पेट्रोल इंजन टेस्टिंग। पेट्रोल इंजन घरों में सबके पास बाइक स्कूटी, घरों में सबके पास बाइक स्कूटी या कार होता है। सर आओ, घरों में सबके पास ये बाइक, इंजन, एवरीथिंग। तो वहां का पेट्रोल इंजन टेस्टिंग कैसे है, वर्किंग। दीज आर 4 स्ट्रोक। जब भी आप स्कूटी लोगे होता है ना 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, एवरीथिंग। सो दीज आर 4 स्ट्रोक, इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली। दिस इज पेट्रोल इंजन टेस्टिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल एवरीवेयर, ऑटोमोबाइल, बिकॉज हर जगह हमें व्हीकल्स चाहिए, वेदर कार, इंजन, पेट्रोल, स्कूटी। तो दिस इज पेट्रोल इंजन टेस्टिंग। दिस इज सिमिलरली दिस इज डीजल इंजन टेस्टिंग। ये पेट्रोल का हो गया, वो डीजल का हो गया। डीजल इंजन टेस्टिंग। तो अब हम किसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक की तरफ। इलेक्ट्रिक की तरफ, बैटरी की तरफ कर रहे हैं। वो बैटरी ऑपरेटेड, वो बैटरी ऑपरेटेड होगा, उसका फ्यूल जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे मॉडल्स हैं वो वर्किंग मॉडल्स हैं। आप समझते हैं वर्किंग मॉडल का क्या मतलब है? मतलब ये वर्क करके आपको दिखाएगा,
You can easily see how it works, on what principles it works. एक तो होता है ना सिंपल ऐसे मॉडल रख दिया आपने देखा होगा टॉयज भी, उस टॉयज जो थे पूरा वर्क करके दिखाते हैं। आजकल तो रोबोट्स का जमाना है, इवन फॉरेन में क्या, इंडिया में भी हमारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं बॉम्बे में, दिल्ली, तो वहाँ रोबोट्स जो हैं दे आर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि दे आर गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स विद ग्रेट एक्यूरेसी। हम एडवांसमेंट क्या हो गया? एडवांसमेंट यही होती है इंप्रूवमेंट, टू मेक आवर लाइफ मच मोर इजियर। अब आपका